success in future. It paves the way to have a good career. Young individuals are our assets, but sometimes they lag behind in completing their studies because of lack of resources and guidance. Students need guidance to explore and plan for future career based on their individual interests, skills and values. Guidance and counseling is the process which helps a student in career selection. Most of us relied on the experience and knowledge of our teachers and parents to answer our questions, but not all of us have that privilege. For students coming from poor economic backgrounds and for those who are the first generation in their family to get education, access to the expensive counseling to decide the career path is limited. Project Udaan aims to help young students to achieve their goals through special career counseling program designed by Saloni Priya, an educationist and career counselor. Innerville members will approach schools and teachers to conduct career counseling program for the students. Innerville is the world's largest women's organization energized by the motto of friendship and service. We believe in service to mankind and making this place a better place to live in. I am thankful to our association president Saroj Katiyar for encouraging us to take this initiative. Thanks to Innerville Club of Central Calcutta for giving shape to this project. The purpose of education is to turn mirrors into windows, and that exactly Project Udaan stands for. Cheerful greetings to all. Udaan is a sustainable project on career guidance and counseling for students who, due to lack of exposure, do not have an insight to various career, vocational and scholarship options. As quoted by Swami Vivekananda, we want the education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. My sincere thanks to District Chairman Jyoti Mahipal of District 3 to 9 for giving opportunity to Innerville Club of Central Calcutta to support this project. I hope this project under the guidance of Saloni Priya of Umeed will enlighten the students in choosing the right careers. As said by Dr. Abdul Kalam, all of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. I wish all the beneficiaries good luck and thank you. Dear students, we all have been coming to school, and all of you who are students of class 9, 10th, 11, 12, these are the last 4 very formative years for us as we move into our life, which is about college, graduation and our vocation and career. आप सभी बच्चों के लिए आज इनरव्हील की तरफ से ये करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो आपको इंसाइट देगा, आपके गाइडेंस के लिए है कि किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी रुचि है, उसके अनुसार जीवन में अपने लिए एक रोजगार मात्र ना ढूंढकर एक करियर ढूंढे। करियर क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक पढ़ाई है, सिर्फ एक कोर्स है, सिर्फ पैसा कमाने का एक रोजगार है, या करियर उससे भी ज़्यादा कुछ है? एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरह पिछले 25 साल से काम करते हुए मैंने देखा इंसान के 50 साल तक की ज़िंदगी में उसका करियर है जो डिसाइड करता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसको किन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू आर अ चाइल्ड, आप बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम इस समय सपने देखें। आप सबके कोई ना कोई सपना होगा। हम बचपन से सोचते हैं ना कि मैं बड़ा होऊंगा या मैं बड़ी होऊंगी तो ये बनूंगी। तो आज हम इसी की बात करते हैं कि कैसे हम इन सपनों को साकार कर सकते हैं। किसी का करियर एक कोर्स तो है, पढ़ाई भी है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़रूरी क्या है? मेरा अपना इंटरेस्ट क्या है। जब भी मैं करियर गाइडेंस करती हूँ तो लोग पूछते हैं मैम विच इज़ द बेस्ट करियर। सो पहली चीज़, दुनिया में कोई एक बेस्ट करियर नहीं है। हमारी अपनी रुचि के अनुसार, हमारे अपने हुनर के अनुसार,
अपनी इंटरेस्ट के अनुसार हम जिस चीज़ को करने में पैशन का महसूस करें, करने से हमें खुशी मिले, हमें लगे कि हम इससे दुनिया में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, वही हमारा करियर होता है। और इसीलिए जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, करियर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन सब के समावेश को ही काउंसलिंग एंड गाइडेंस कहते हैं। और इसीलिए हम सब के जो ड्रीम्स हैं, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल सपने देखिए और सोचिए कि वो ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा पहली जर्नी शुरू होती है करियर गाइडेंस के लिए, हमारा करियर गोल। अगर मेरा ये सपना है तो मैं उससे क्या हासिल करना चाहता हूँ, और उस सपने को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले ये 5 चीज़ें करनी है। माई स्ट्रेंथ, माई एबिलिटीज़, किन सब्जेक्ट्स को मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। किसी को नंबर्स पे काम करना अच्छा लगता है, किसी को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, किसी के लिए मैम मेरे को फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट करना, मुझे प्लैनेट्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो किसी को लगता है मैम मैं हाथों से कुछ भी बना सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी हो, डिज़ाइन हो, नंबर्स हो, इन सब की रुचि की कोई ना कोई ऐसा करियर है जहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको एक बहुत ही कामयाब करियर दे सकता है। तो आइए अब हम सब बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स मिलके इस जर्नी की शुरुआत करते हैं कि हम किस तरह से 10th और 12th से वो सीढ़ियाँ बनाते हैं जिनको चढ़ते हुए हम अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर डिसाइड करेंगे। वो करियर जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने देगा और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जिम्मेदारी के साथ डील कर सकेंगे। तो पहले स्टेप्स जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, नो माई सेल्फ। आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं उनको लिखिए, लिस्ट बनाइए कि मैम मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है, किसी को क्रिएटिव काम अच्छा लगता है कि मैम मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, किसी को चांद तारों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, कोई किसी के सामने बोलने से झिझकता है लेकिन वो लिख बहुत अच्छा सकता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपकी एबिलिटीज़ हैं, तो इनकी लिस्ट बनाइए। देन नो योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स, इसके बारे में हम आज आपको स्लाइड्स पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से वेरियस कोर्सेज हैं और किस तरह से इन कोर्सेज के साथ हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको हेल्प करेगी और किन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से आप किस तरह के करियर्स ले सकते हैं। बहुत से ऐसे भी करियर्स हैं जो किसी एक खास सब्जेक्ट से नहीं है, जैसे कि लॉ। अगर आपको लॉ करना है तो आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, आप किसी भी भाषा में पारंगत हो, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है। तो आप साइंस पढ़ के भी लॉ कर सकते हैं, आप आर्ट्स पढ़ के भी लॉ कर सकते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और फिर हमारे एस्पिरेशंस, हमारी उम्मीदें, हमारी हसरतें और हमारे सपने। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, जैसे कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल जी कलाम ने कहा था ना कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो अब 9th, 10th, 11th, 12th में हमारा समय शुरू होता है कि हम जग जाएं और देखें कि हम अपने जीवन में आगे कैसे रास्ता बनाते हैं। इसीलिए आफ्टर क्लास 10 के बाद से हमें सोचना चाहिए कि 11th एंड 12th में हम क्या सब्जेक्ट्स लेंगे, और इसलिए नहीं कि मैम हमारे दोस्त लोग ये ले रहे थे तो हम भी ले लिए। आपको ये डिसीजन लेना है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से आगे 12th के बाद मैं इस कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन लूँगा। तो करियर प्लानिंग कम से कम 5 साल की प्लानिंग होती है जो 10th से हमें शुरू करना चाहिए। क्लास 10 के बाद हमारे रीजनल बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE हो, उसमें क्या होता है, हमें चूज़ करना होता है 5 विषय। और ये जो 5 विषय है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 मुख्य धाराओं में है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। साइंस में ज़्यादातर लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं। कौन लेता है? जिसको इंजीनियरिंग करना हो, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको एरो फिजिक्स पढ़ना है, जो कि नासा जाने का सपना देखता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेगा। ठीक वैसे ही जिसको डॉक्टर बनना है, हमको नर्सिंग में जाना है, हमको पैरामेडिकल में जाना है, हमको रिसर्च में जाना है, मैम हमको आज देखो पेसमेकर जैसी चीज़ भी कैसे बनी है, दीज आर बायो इंजीनियरिंग। तो बायोलॉजी और इंजीनियरिंग में भी आज जो है मिल गए हैं।
तो इसमें लोग क्या लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कुछ लोग आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों भी लेते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि मैम हम इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिकल। ये भी आप कर सकते हैं। कॉमर्स में ज़्यादातर अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, कॉमर्स है, कमर्शियल स्टडीज़ है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में आप देखिए और स्कूलों में भी हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ के आप धीरे धीरे अपने करियर की तरफ बढ़ सके। अब इंग्लिश है, हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये लैंग्वेज हैं, लेकिन लैंग्वेज एक स्किल है। अगर आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो क्या आप लीडर हो सकते हैं? क्या आप किसी टीम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? तो चाहे आप लॉयर बनिए या इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए या आप एक आर्टिस्ट बनिए, आप फिल्म फोटोग्राफी करिए या आप एक रिसर्च स्कॉलर बनिए, हर किसी को कम्युनिकेशन जरूरी है। तो एक बात मैं सभी बच्चों को यहाँ बताना चाहूँगी कि भाषा पे बहुत ध्यान दें, और इसीलिए हमारे बोर्ड्स ने, चाहे रीजनल या सीबीएसई या आईसीएसई, हमेशा आपको लैंग्वेज कंपलसरी रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल है। तो कभी भी आप क्लास 12th के बाद से या 11th 12th में अपने लैंग्वेज को निगलेक्ट नहीं करिए, क्योंकि लैंग्वेज आपके लिए हर कहीं पे भी इंटरव्यू होगा, एलिजिबिलिटी होगा, स्कॉलरशिप होगा, आपको अपनी बात कहनी होगी। तो सब्जेक्ट की नॉलेज जरूरी है, लेकिन भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप में से जो भी बच्चे सपने देखते हैं कि मैम हम किसी फॉरेन कोर्स में जाएंगे, हम कहीं अब्रॉड जाके पढ़ेंगे, उनके लिए भी ज़रूरी है अपने देश को जानिए, अपने रूट्स को जानिए और अपनी भाषा और संस्कृति को ज़रूर जानिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, आप अपने देश के बारे में कुछ बताइए। आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, मुझे बताइए उस स्कूल में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो वहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को कभी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये किसी करियर की इंफॉर्मेशन की किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये ज़िंदगी की रियलिटी। तो फिर हम देखते हैं क्लास 12th में हमने कॉमर्स लिया या हमने ह्यूमैनिटीज़ ली। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एक बहुत विस्तृत रूप है, यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जितने लैंग्वेजेस हैं, आप एजुकेशन में पढ़ना चाहें, साइकोलॉजी पढ़ना चाहें, जैसे सलोनी मैम आज साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने क्लास 12 तक साइंस पढ़ा, लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी ली और आज मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि लोगों में थी, मुझे हमेशा बच्चे अच्छे लगते थे, तो मैंने साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में मेजर किया और आज मैं इतने स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ काम करती हूँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और मुझे आज भी 17 घंटे काम करने में थकान नहीं होती है, क्योंकि मेरा करियर वो है जो मेरी एबिलिटी से है, मेरा पैशन है, मेरे जीवन को एक मकसद देता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज इनर व्हील और हम सभी का यही मेजर दायित्व है कि हम आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि आप भी अपने जीवन में किस तरह से एक करियर का चयन करें जो आपको जीवन यापन के साथ साथ जीवन में एक मकसद भी दे। तो आज आप अगर स्कूल में सिविक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ग्रेजुएशन में आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लास 12 के बाद वो क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले समझिए कि क्लास 12 के बाद पहला जो डिग्री है उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। हमारे देश में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल के भी कोर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेजुएशन कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ये अगली सीढ़ी है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज है MBA। बहुत से बच्चे कहते हैं सलोनी मैम मैं MBA करना चाहता हूँ। 12th के बाद आप MBA नहीं कर सकते हैं, पहले ग्रेजुएशन करेंगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं मास्टर्स और ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं बैचलर, इसीलिए उनको बैचलर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि आपको समझना डिग्री और डिप्लोमा। देखो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को डिग्रीज कहते हैं, बहुत सी कोर्सेज जो कि शॉर्ट है या कभी कभी बहुत वोकेशनल कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा के नाम से भी मिलते हैं। जैसे हमारे नेशनल जो ITIs हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, वो हमें डिप्लोमास देते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि डिग्री अच्छी होती है और डिप्लोमा खराब होता है। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं जो कि उसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ITI
अगर आप विजयवाड़ा ITI से पॉलिटेक्निक की डिग्री ले रहे हैं वहाँ से, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं, कौन से हमारी कंट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसकी क्लास 10th से आपको तैयारी करनी चाहिए, और कितने तरह का स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए बनाया गया है, इसकी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जो स्लाइड है आप देखिए, इसमें मैंने इतने सारे बैचलर प्रोग्राम आपको दिए। इसमें मैंने BA भी दिया है। अब BA में ही अगर आप देखिए तो कितने सारे, हर सब्जेक्ट के साथ आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, एजुकेशन में करेंगे तो B.Ed कहलाता है, लाइब्रेरी साइंसेस करिए। बहुत से बच्चों को लगता है मैम हमें लाइब्रेरियन क्या करेंगे। लाइब्रेरियन आपको पता है बहुत अच्छी जॉब है, आप हमेशा किताबें पढ़ सकते हैं। आजकल कंप्यूटर्स के साथ डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। आज आपकी अमेरिकन एम्बेसी हो या आपका अमेरिकन सेंटर हो या ब्रिटिश काउंसिल हो, ये सब तो लाइब्रेरीज हैं। आज जितनी भी आपकी नेशनल लाइब्रेरीज हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं। नेशनल आर्काइव्स कलकत्ता में आपने देखा है कैसे, अलीपुर जू के सामने यू हैव अ नेशनल आर्काइव, आवर नेशनल लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरियन इज अ वेरी वेरी गुड जॉब। अगर आपको बुक्स अच्छी लगती हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, आपको लगता है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला जॉब नहीं करना है, मुझे ऐसा जॉब करना है मैम, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जॉब। लाइब्रेरी साइंसेस के बारे में जरूर देखिए, इट्स अ वेरी वेरी अपकमिंग करियर। आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी लाइब्रेरी साइंसेस के लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, जैसे कि टाटा स्टील में उनकी जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो उसमें लाइब्रेरी साइंसेस को लेते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया है। BCom है, अब आप BCom और कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, आप BBM कर सकते हैं, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप आगे एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, मैम मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो हम शायद BBA कर सकते हैं, BBM कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन से ही इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब हम 3 साल BA और 2 साल MA करने की जगह 4.5 साल 4 साल का इंटीग्रेटेड है। तो लॉ एंड मैनेजमेंट, लॉ एंड कॉमर्शियल स्टडीज, अकाउंट्स विथ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ अ डिग्री इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज में जाना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स के साथ फाइनेंशियल डिग्री कर सकते हैं। बहुत से BBA MBA के भी इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। सो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें जितना आपको सलोनी मैम दिखा रही हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे भी कितने ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कोई बच्चा ये नहीं सोच सकता है कि मैम मैं तो इंजीनियर नहीं बन सकता, मैम मुझे तो मैथ्स नहीं अच्छा लगता, तो मैम तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं पढ़ता नहीं। ऐसा नहीं है। हर के लिए आप में कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई एबिलिटी है। आपको अगर सही कोर्स मिले तो आप भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। करियर गाइडेंस का मतलब ही यही है, आपके स्किल्स, आपके हुनर के साथ हम किसी कोर्स को मैच कराएं कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो। और इसीलिए देखिए मैंने आपको यहाँ चार्ट बना के भी दिखाया है कि किस तरह से CA है, CS है, आपका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स है। अब CA है, बहुत से लोगों को लगता है मैम CA में तो बहुत कम लोग पास होते हैं। ऐसा नहीं है। CA अगर आप BCom के साथ CA कर रहे हैं तो 5 साल के अंदर आप ग्रेजुएट भी हैं और आपके पास एक वोकेशनल डिग्री भी है। लेकिन हाँ, CA की पढ़ाई को क्लियर करने के लिए मेहनत चाहिए। तो किसी भी अच्छे करियर के लिए मेहनत चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ हार्ड वर्क इज ऑलवेज इन फैशन। शॉर्टकट्स बहुत थोड़े दिन में काम आते हैं और थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं। तो अगर लॉन्ग वर्क करना है, कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो हमें अगले 5 से 7 साल मेहनत करनी है, अपना करियर बनाना है। और सोचिए उसके बाद हम जीवन के 50-60 साल आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमने ये 5 से 7 साल में अपने करियर पे इन्वेस्ट किया। तो इसी को आगे देखो, मैंने ये कोर्सेज के नाम यहाँ आपके लिए हैं देखने के लिए कि कितने तरह के बैचलर कोर्सेज अवेलेबल है। डिज़ाइन में, लॉ में, आप डिज़ाइन में ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हो। आज आप आर्किटेक्ट्स जो हैं, इंजीनियरिंग में BTech आर्किटेक्चर करके लोग डिज़ाइन का कोर्स करते हैं मास्टर्स में। क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, उसके बाद में अगर हाउस डिज़ाइन करना चाहता हूँ घर, तो मैंने डिज़ाइन में भी कोर्स किया।
आजकल लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी डिज़ाइन का कोर्स करते हैं, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए डिज़ाइन आर्ट होता है, ऐसा नहीं है। आज आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, हर बार आप देखो एक नया मॉडल आता है, नया डिज़ाइन आता है। तो ये डिज़ाइन कोर्स कौन करता है? जो इंजीनियरिंग किया है, उसने कंप्यूटर्स किया है, और उसने फिर कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिज़ाइन कोर्स किया है। तो आज वो कंप्यूटर का डेटा एंट्री नहीं करता है, वो कंप्यूटर्स के मॉडल को डिज़ाइन करता है। और इसीलिए ऑटोमोबाइल हमेशा नई नई कार के मॉडल्स आते हैं कि नहीं? जितने आपके घर में अप्लायंस हैं, चाहे वो फ्रिज हो चाहे फैन हो, देखो सब में डिज़ाइन है। तो ये जो हमको लगता है ये साइंस है और ये आर्ट्स है, ऐसा नहीं है। साइंस आर्ट्स सब मिलते हैं और सबके साथ एक ही चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्किल्स हैं। जब सब्जेक्ट्स और स्किल मिल जाते हैं तब आप बेस्ट करियर डिसाइड कर सकते हैं। और इसीलिए जितने तरह के कोर्सेज हैं, अगर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात आए कि मैम मैं ये 5 चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मज़ा है। जानिए, वेबसाइट पे जाइए, किताबों में देखिए, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी और फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी कोर्स हो सकता है। अब देखो साइकोलॉजी है, बहुत से बच्चे 11th 12th में आज साइकोलॉजी ले रहे हैं। साइकोलॉजी की ही देखो कितनी ब्रांचेस हैं। आप स्कूल में काम करना चाहते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं, और माइंड यू टीचिंग बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। आज अगर एक लड़का बीटेक करता है, बीटेक करने के बाद एमटेक करता है और उसके बाद वो बिट्स पिलानी ज्वाइन कर लेता है और वो वहाँ प्रोफेसर है, तो वो क्या है? कोर्स उसका इंजीनियरिंग है पर करियर उसका क्या है? टीचिंग है। तो अगर हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैम मुझे रिसर्च करना है, मुझे नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए शायद एक कंपनी में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने से उसको एक कॉलेज में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टीचिंग एक एवरग्रीन करियर है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। चाहे आप इंग्लिश में मेजर करिए, साइकोलॉजी में करिए। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो साइकोलॉजी में मास्टर्स करके और वो आज प्रोफेसर है। तो टीचिंग का एक करियर है जो ज़रूर सोचिएगा। सेकंड है सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी। कभी ये मत सोचिए कि मैम ये लैंग्वेज जो पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। आज इंटरप्रेटर्स के जॉब्स हैं, ट्रांसलेटर्स के जॉब हैं, आज ग्लोबल इकोनॉमी है। आज कोई भी बिजनेस करना चाहता है, और आज अगर मुझे जापान से बिजनेस करना है तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए ना जिसको जापानीज लैंग्वेज आती है और वो जापान का कल्चर हमें बता सके। तो आप देखिएगा TCS जो हमारे ये भारत का इन्फोसिस, विप्रो, ये बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स को नौकरी देते हैं। और आप देखिएगा सबसे पहले ये ट्रेनिंग कराते हैं लैंग्वेज की। और अगर आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है, आपको बंगाली आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और आपने तमिल भी सीख ली, तो आप लैंग्वेज इंटरप्रेटर बन सकते हैं। आप म्यूजियम्स में जॉब कर सकते हैं हिस्ट्री और इंग्लिश के साथ। तो इस तरह के नए करियर्स के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप करें। 2-3 साल के कोर्स के बाद आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है और ये जॉब्स आपको बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप सोचो जो इंटरप्रेटर्स हैं और वो गवर्नमेंट के डेलीगेशंस के साथ फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, तो शायद एक इंजीनियर उतना फॉरेन नहीं घूम रहा है जितना ये संस्कृत का एक मास्टर्स पर्सन जो संस्कृत में चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकता है, तो वो आज कहाँ काम कर रहा है? एम्बेसी में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर कोडिंग में हो रहा है। तो ही इज़ नॉट एन इंजीनियर बट ही इज़ वर्किंग विद दैट। और इस तरह की चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। जैसा मैंने स्लाइड पे डाला है, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस में करियर्स हैं, फायर सेफ्टी, जितने सिविल इंजीनियर्स चाहिए उतने फायर के एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग हो, स्कूल हो या मॉल हो, उसमें फायर सेफ्टी चाहिए। तो ये जो नई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि होम साइंस। अब बहुत से लोगों को लगता है मैम होम साइंस करके क्या करेंगे, खाना थोड़ी बनाना है। होम साइंस या होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट खाना बनाना। आज आपका कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ देखिए डाइटिशियंस के कोर्स है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो अगर आप डाइटिशियन का कोर्स करिए, न्यूट्रिशन का स्पेशलिस्ट बनिए। आज आप देखिए पूरे कोरोना समय में हम सिर्फ वेलबींग की बात कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग, ऑर्गेनिक। तो ये सब काम कौन कर रहा है? वो लोग जो कि होम साइंस में काम कर रहे हैं। तो होम साइंस इज़ अ साइंस अबाउट गुड वेलबींग। तो ज़रूर से इस कोर्स को लें, ये बिल्कुल वोकेशनल कोर्सेज हैं। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में शेफ से लेके मैनेजमेंट तक के जॉब्स हैं, तो इसके बारे में और पढ़िए। और जैसा कि आप देख सकते हो,
इंजीनियरिंग 4 साल का ये जो बीटेक कोर्स है ये बहुत पॉपुलर है। आप में से जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं आपको खुद भी पता होगा, और जैसे यहाँ मैंने स्लाइड में डाला है कितने तरह की इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस हैं। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मेडिकल है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत हमारे यहाँ 17-18 लाख बच्चे इन एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। पैरामेडिकल और ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आज जब कोरोना के समय में डॉक्टर से भी ज़्यादा पैरामेडिकल, तो ऑप्टोमेट्री में कोर्स है, नर्सिंग से भी ज़्यादा आज डायलिसिस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो लोग आज ओटी के असिस्टेंट्स होते हैं, पॉलीटेक्निक्स में जो कोर्सेज हैं, मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि पॉलीटेक्निक के जो कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग की ज़रूर तैयारी करिए, लेकिन आईटीआई के पॉलीटेक्निक के कोर्सेज को भी ज़रूर से देखिए। आईटीआई के जो 2 साल के कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन के साथ बहुत से ये कोर्सेज हैं, रिपेयरिंग है, मोटर व्हीकल है, मैकेनिकल है, कितने तरह के कोर्सेज हैं। देखो यहाँ टूल्स में है। आज आप देखिए एक रेलवेज में भी इंजीनियर्स जरूर होते हैं, लेकिन एक इंजीनियर के नीचे कम से कम 20 जो है सुपरवाइजर्स होते हैं, जो ग्रेट फिटर्स हैं, जो बहुत तरह का टेक्निकल काम करते हैं और ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक उसी तरह से जितनी भी तरह के बायोमेडिकल है, मरीन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, लेदर है, टेक्सटाइल है, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप 3 साल के ये कोर्स करें। और किसी को भी अगर ये लगता है कि मैम अगर हम ये कोर्स करेंगे तो हमको नौकरी कहाँ मिलेगी, देखिए ये जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज के मैंने नाम यहाँ दिए हैं, डीआरडीओ है, गेल है, ये जितने भी हैं, आईपीसीएल है, एनटीपीसीए है, बीएसएनएल है, ये सारे पॉलीटेक्निक के ग्रेजुएट्स को जॉब्स देते हैं। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो देखिए मैंने ये लिस्ट बनाई है आपके लिए कि किस तरह से प्राइवेट कंपनीज में, एयरलाइंस हो, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं, कम्युनिकेशन फर्म्स जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन है, इंडिगो एयरलाइंस है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा है, ये सारे लोग पॉलीटेक्निक के कोर्सेज में जॉब्स देते हैं। ये मैंने कुछ आपके लिए नाम दिए हैं यहाँ, ये हमारी कंट्री के कुछ बहुत ही अच्छे पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं। आप वेबसाइट पे जब जाएंगे जो मैं दे रही हूँ तो आपको और समझ में आएगा। और इसीलिए 12th के बाद सबसे ज़रूरी है ये स्टेप लैडर, एक सीढ़ी, 10th, 12th, फिर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम। और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमें कैसे करनी है, आपको अंदाज़ा है कि 12th के बाद कितने तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी की जा सकती है। देखिए ये चार्ट है जो इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल है, इसमें हमने आपको वेबसाइट्स के नाम दिए हैं। हर वेबसाइट से आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कब फॉर्म मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, उसमें जीडी होता है या आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस है या इंग्लिश में एक क्लास पेपर है, इसके बारे में पढ़िए। और देखिए कितने सारे हैं, चाहे वो एम्स हो, नीट हो, जेई मेंस हो, बिटसैट हो, जिपमेर हो, एनडीए, शायद बहुत लोगों का सपना है आर्मी ज्वाइन करने का, होना भी चाहिए। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इनके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग के जैसे एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल के जो ये एग्ज़ाम्स हैं। और आजकल सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट्स अपडेट होती रहती हैं और इसीलिए आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिलेगी। छोटे छोटे जो स्कूलों में मैंने हमेशा ये किया है करियर क्लस्टर। अब हम अगर 10 बच्चे हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं, तो हम एक छोटा सा ग्रुप बना लें, हम लोग लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे सर्च करें, अपने इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करें और एक दूसरे की मदद करें। तो कितना अच्छा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद हर स्कूल में हम करियर क्लब्स बना दें। छोटे छोटे डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, जितने लोग होटल मैनेजमेंट सोचते हैं, जो MBA करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है। और इसीलिए देखिए यहाँ मैंने आपको दिया है मरीन, नेवी और डिफेंस के एंट्रेंस एग्जाम्स के गवर्नमेंट साइट्स हैं ये, इन पे जाइए और देखिए कि किस तरह से आप सेलर में भी जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के बाद भी कैसे आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कैसे खड़कवासला पुणे में NDA कैडेट बन सकते हैं, और NDA में जाने के बाद आप कैसे हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पता करिए और देखिए आपकी दुनिया ही बदलती है। तब आपको दिखेगा करियर गाइडेंस का मतलब क्या है, नए रास्ते बनाना, आपकी सोच में ये बदलाव लाना कि मैडम
लाइफ इज़ नॉट एंडिंग, अभी तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता। देखो ये और मैंने आपको लिस्ट दिए हैं, कितने और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कैट, क्लैट, CET, NDA, पढ़िए और देखिए कोई ना कोई ये करियर आपका इंतज़ार कर रहा है, इस कोर्स को क्वालिफाई करें। लॉ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, एक तो यहाँ कैलकाटा में ही है जो बहुत अच्छा है। आपको लॉ और कॉमर्स का भी करियर हो सकता है, लॉ के साथ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉ के साथ अकाउंट्स कर सकते हैं, क्योंकि लॉ का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि हमको जाके वकील की तरह खड़े होके क्रिमिनल लॉ ही करना है। कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं आप, और कॉर्पोरेट लॉ करने वाले वकील जो हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं। लॉयर अपना फर्म शुरू कर सकते हैं। सलोनी मैम साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आज मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ और एंटरप्रेनर भी हूँ। मेरी अपनी कंपनी है जिसके साथ हम चलते हैं। सो हर चीज़ की शुरुआत छोटे से है, लेकिन हम एक फिनिशिंग लाइन पे खड़े हैं जहाँ से हमें अपना डायरेक्शन देखना है और आगे दौड़ लगानी है। और जब हमें ये दिशा मिलेगी तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी थोड़ा जानिए। ये पूरा चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए कि किस तरह से आप ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरियां मिलती हैं। बहुत से लोग आजकल ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करते हैं, जॉब्स को सीखते हैं और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। दोनों ही रास्ते हैं। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की ये लिस्ट है आपके लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहूँगी कि आप तक ये बात पहुँचे कि कोई एक सब्जेक्ट बेटर नहीं है, खाली यही 4-5 करियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, पर बहुत से बच्चे इन रास्तों पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सही समय में जानकारी ही नहीं होती है। हमें पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ से ये जानकारी लेनी है। और इस वीडियो का यही मकसद था कि हम आप तक ये जानकारी, ये जितने वेबसाइट्स, 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं, और उसी के साथ स्कॉलरशिप्स, कितने सारे बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, आपको अपने स्पोर्ट्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे, आपके सब्जेक्ट्स में अगर आपने इतना स्कोर किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी आपको फंड्स देती हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए आज के ज़माने में कि मैम अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आगे इतना कैसे पढ़ सकता हूँ। अगर आप में डिज़ायर है, आपने 10th 12th से अपने लिए एक दिशा बनाई और आप काम करेंगे, तो ये देखिए कितनी सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो आपको स्कॉलरशिप दे सकती हैं। और मैंने बहुत से बच्चों की मदद की है। यहाँ पे आपके स्कूल में आपकी अटेंडेंस, आपने स्कूल में किस तरह से परफॉर्म किया है, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, आपका कंडक्ट कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसके लिए बहुत बार आपके टीचर्स और प्रिंसिपल का जो लेटर है वही इस स्पॉन्सरशिप में लगता है। आप स्कॉलरशिप के इन वेबसाइट्स पे जाएं और अपने प्रिंसिपल, टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। और यहाँ पे जो हमारे 12th के बच्चे हैं वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले ही भरनी होती है। तो ज़रूर इसके बारे में जानकारी रखिए। और ये देखिए, यहाँ मैंने आपको 26 तरह के स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है। करियर इंफॉर्मेशन, करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस, इन तीनों के लिए हमारी सरकार ने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, और इस सर्विस का नाम है नेशनल करियर सर्विस। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये होम पेज है इस वेबसाइट का। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक है। और आप देखिए, जैसे कि अगर आप जैसे ही लिखेंगे www.ncs nationalcareerservice.gov.in, आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। और इस ब्लू स्क्रीन में आपको ये इतनी चीज़ें दिखेंगी। क्या क्या हैं ये चीज़ें? जॉब सीकर, जिसको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर, किस तरह के लोग हैं जिनको किस तरह के करियर्स के लोगों की ज़रूरत है, काउंसलिंग, अगर आप किसी भी करियर काउंसलिंग के लिए चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा है कि अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपना नाम देंगे, तो आपको एक काउंसलर अपॉइंट किया जाएगा।
मैं भी नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स में सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, तो आपको एक ऐसे काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप अपनी बहुत सारे सवाल उनके साथ उसका आंसर ले सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें से क्लिक करेंगे काउंसलिंग पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको करियर काउंसलिंग के लिए एक वीडियो दिखेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी या नंबर दें तो आपको एक काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट मिले। इससे भी ज़्यादा अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं लेकिन आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो अगर आप इसी स्क्रीन में नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बीच वाला जो है ये करियर इंफॉर्मेशन है। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन में कम से कम 52 सेक्टर्स, आप देखो, ज्वेलरी है, बिजनेस है, ब्यूटी है, वेलनेस है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, इस तरह के जितने भी करियर्स हैं ये सेक्टर है। और आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर में जॉब्स क्या है, आपको किस तरह का कोर्स करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ये कोर्स भारत में अवेलेबल है, आपको कोर्स के लिए कितना पैसा चाहिए, इसका एंट्रेंस कब होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं ज़रूर से चाहूँगी कि आप ये नेशनल करियर सर्विस का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये भारत के कोने कोने में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप और आपके पेरेंट्स ज़रूर से इसको जाएं। देखिए कितने सारे टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, सिरेमिक्स, टाइल, कितने तरह के करियर्स की इंडस्ट्री के लिए आपको कहाँ डिप्लोमा चाहिए, कहाँ कोर्स कर सकते हैं, कैसे आपके बच्चे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स भी एक ग्रुप बनाएं और टीचर्स को स्कूल में जो मुख्य उनका कार्य है उसके बाद इसमें लगाएं। लाइब्रेरियन हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, वो भी अपने अपने एरियाज़ में इस वेबसाइट से जाके बहुत यूज़फुल फिज़िकल एजुकेशन, वुड एंड कारपेंट्री, इस तरह के भी टेक्सटाइल, हैंडलूम, एंटरप्रेन्योरशिप, सबके बारे में आपको ये बिल्कुल खजाना है। हजारों इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, प्लीज़ विजिट द होम पेज ऑफ नेशनल करियर सर्विस। सो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी। 10th 12th से हम किस तरह से आगे के 5 साल के बारे में सोचें। आज इस वीडियो में आपको करियर इन्फॉर्मेशन मिली है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, रिसोर्सेज मिले हैं और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अब आपके सामने बहुत से रास्ते हैं। इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना है, अपना प्लान बनाना है और जब भी आप करियर की प्लानिंग करिए तो ग्रुप्स बनाइए लाइक माइंडेड लोगों के, अपने फ्रेंड्स जो भी ऐसा करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करिए और आपके प्रिंसिपल और टीचर्स जो आपके स्कूल में हैं, इस वीडियो के माध्यम से और ये इतनी सारी वेबसाइट्स जो हमने आपको दी हैं इनके माध्यम से ज़रूर आपकी मदद कर सकेंगे। एंड आई डू होप एंड विश कि आप सबके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो, आप इस सोसाइटी में एक जिम्मेदार नागरिक बने और दुनिया में कोई ना कोई बदलाव ला सके। ऑल द बेस्ट। Ms. Saloni Priya, Founding Director of Umeed Counseling and Consulting Services, a counseling psychologist contributing to mental health awareness, psycho-education of educators and life skill training of children and adolescents for more than 24 years. She has been a pioneer in setting counseling system for more than 200 educational institutions, and her certification of counseling has been taken by 5,000 teachers, NGO workers and caregivers in 19 states of India as well as in countries like Doha, Dubai, Muscat, Nepal, Bhutan, Bangladesh, etc. A believer in positive psychology to create well-being of community and creating coping mechanisms of distress, depression and career guidance had made her recipient of Nation Building Award. Her passion is to bring out the best of children and adolescents and give them umeed.